یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے، لیکن ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں؟ KPK میں جو اس وقت قیامت صغریٰ ہے، اس وقت کا دور کچھ اور تھا، 2025 کا دور کچھ اور ہے کہ اس وقت صورتحال بڑی نازک چل رہی ہے، بے انتہا نازک چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے کہ میرا پاکستان اور میرے پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی شاد و آباد ہوں، آمین ثم آمین۔ میں ہوں اسلم بھٹو۔ آج کافی دنوں کے بعد میں اپنا ولاگ کر رہا ہوں۔ میری طبیعت ناسازی کی وجہ سے میں نہیں کر سکا تھا، لیکن آج میں کر رہا ہوں۔ آج بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو KPK میں جو اس وقت قیامت صغریٰ ہے اس پہ ڈسکس کریں گے، اور اس وقت جو سچویشن جو 14 اگست کو عمران خان کو مائنس کرنے کے کرتے کرتے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس کر دیا گیا، اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہفتے پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس کا عنوان تھا کہ کیا پاکستان کے اندر پھر ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسی کہانی دہرائی جائے گی یا دہرانے والے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کس طرح سے بات کی ہے۔ تو آج آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ 4 دن سے 5 دن سے تمام جو ہمارے ولاگر دوست ہیں، بھائی ہیں، یا پھر جس طرح سے لوگ ہیں، یہ اس پہ بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے جو پاکستان کے مایہ ناز سہیل وڑائچ صاحب نے جو ابھی انہوں نے جو اپنا اداریہ لکھا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں جس طرح سے کھلم کھلا عمران خان کو دھمکی دی گئی ہے، تو اس سلسلے میں بات ضرور کروں گا میں۔ جس وقت بھٹو صاحب کو 79 میں پھانسی دی گئی تھی، تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اس وقت کا دور کچھ اور تھا، اور آج 2025 کا دور کچھ اور ہے۔ نہ اس وقت سوشل میڈیا ایکٹیو تھا اور نہ ہی اتنے لیڈران ایکٹیو تھے۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس وقت کے لیڈران بھی بک گئے تھے اور عوام کو غلط رپورٹ دی گئی تھی، جس کی بنیاد پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، اور کہا گیا، اور سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے اداریے میں ضرور لکھا ہے یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کتنے مضبوط تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو انڈائریکٹلی یہ دھمکی ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کی جو قیادت ہے اس میں بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں، اور کچھ لوگ ڈبل وکٹ پہ بھی کھیل رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی بکے ہوئے ہیں۔ لیکن عمران خان کی ایک خصوصیت ہے، عمران خان کی ایک اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے مدد ہے کہ پاکستان کی عوام عمران خان پہ لبیک کرتی ہے، اور اس کا آپ نے ابھی رزلٹ دیکھا تھا۔ 5 اگست کو جو سلسلہ ہوا تھا، اور پھر جو 14 اگست کو جو ہوا ہے، جو لاکھوں لوگ پورے پاکستان میں نکلے تھے، میرے خیال میں مجھے تو کم از کم کوئی بڑی قیادت نظر نہیں آئی تھی، کارکنان خود نکلے تھے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور الگ تھا، یہ وقت دور الگ ہے۔ تو میں پاکستانی قوم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے بعد 40 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جوڈیشری مرڈر غلط تھا اور یہ غلط فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو میں پاکستانی قوم سے یہ کہتا ہوں، کیا آج پھر آپ اسی 40 سال کے بعد آپ یہ سننا چاہو گے کہ یہ دوسرا جوڈیشری مرڈر ہوا تھا؟ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس وقت ہمارے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، کہ بلوچستان اس وقت ایک چلتے توے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ شام 5 بجے کے بعد کوئی سفر نہیں کر سکتا، وہاں کی ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں۔ اور KPK میں جو اس وقت قیامت صغریٰ ہوئی ہے، جو KP میں کہتا ہوں کہ کم و بیش 700-800 افراد کی جو ہلاکت ہوئی ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اپنے قبلے درست کر لیں، ورنہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن مجھے بڑا افسوس ہوا تھا جس دن عمران خان کی دونوں بہنوں کو جب پولیس موبائل میں بٹھایا گیا تھا، تو اس وقت عمران خان کے بہنوں کے علاوہ PTI کی کوئی قیادت موجود نہیں تھی۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ قیادت وہ رکھی جائے جو مضبوط قیادت ہو، اعصاب کی بھی مضبوط ہو اور نظریے کے ساتھ بھی مضبوط۔ تو اس کے علاوہ
मैं और क्या कह सकता हूँ कि इमरान खान को अगर कोई नुकसान पहुँचता है, अगर जैसे आजकल बातचीत चल रही है कि तबीयत ख़राब है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, तो ख़दशा इस बात का है कि अगर इमरान खान को कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीरता वाली हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि ये 79 नहीं है, ये 2025 है, और 2025 की जो नौजवान नस्ल है, जो पाकिस्तानी कौम है, अवाम है, वो बड़ी बाशऊर है इस वक्त, और वो कभी भी किसी भी गलत चीज़ की ना हिमायत करेगी और ना उसको कबूल करेगी। तो लिहाजा सोच समझ के फैसले किए जाए। और फिर सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं, इमरान खान को मशवरा देते हैं कि आप माफ़ी मांग लें किसी भी तरीके से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 300 केसेस बनाए गए, जो पीटीआई के हज़ारों लोगों को पकड़ा गया है, जो इस वक्त जेलों में हैं, जिन पे तशद्दुद हो रहा है, जिनको 10-10 साल की कैदें हुई हैं, 5-5 साल की कैदें हुई हैं, सिर्फ इमरान खान की माफ़ी पे तो क्या ये तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे? तो इसका ये मतलब हुआ कि ये केसेस जितने भी बने हैं, ये सारे धोख धतूरा है और ये तमाम केसेस गलत हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ चल रही है, ये बड़ी गलत किस्म की चीज़ चल रही है, और पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। और इस पाकिस्तान को हमें और आप में मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत करना है। केपीके में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त सैलाब है, जो लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फ़ौज के सिपाहियों को कि जो इस वक्त मुश्किल हालात में उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। तो लिहाजा और जो मैं उन शोहदा अपने फ़ौजियों को भी सलाम पेश करता हूँ जो बलूचिस्तान में हमारे 4 मेजर कर्नल वगैरह जो थे वो शहीद हुए हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है, लेकिन हम किस चीज़ में फंसे हुए हैं कि इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ बिठा दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। मेरे जहन में मैं एक सजेशन है, रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को मैं एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ। वो तजवीज़ ये देना चाह रहा हूँ, और ये तजवीज़ मेरे जहन में उस वक्त आई है जब हमारे सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी साहब ने अपने डांस करने के बाद जब खिताब किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि वोट ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं भी देंगे तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि वोट जिसका मर्ज़ी होगा उसी का ही निकलेगा। और ये मुस्कुरा के हंस के ये बात कर रहे थे। ये हंस के मुस्कुरा के बात करने के लिए समझे 25 करोड़ आवाम की तौहीन हुई है इसमें। और मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को और हमारे चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन की वक़्त तो ख़त्म हो गई। तो इनके बयान के बाद मैंने ये जहन में सोचा कि मैं ये तजवीज़ मेरे जहन में आ रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि जब उसकी वक़्त नहीं है, जब उसकी हैसियत नहीं है, जब मैं अलिफ को वोट डालता हूँ और डब्बे में से बे का वो वोट निकलता है, तो इसका मतलब है इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है। सो लिहाजा अब करना ये चाहिए, जैसे औरतें बीसी डालती हैं, पर्चियाँ डालती हैं, इसी तरह से हर 5 साल के बाद आप पर्चियाँ डालें, क्योंकि पर्ची पे ही सारा काम हो रहा है। आप पर्चियाँ डालें, उसमें सेनेटर, एमपीए, एमएनए उनके नाम लिख के जिसकी पर्ची निकले उनको सेनेटर, एमपी, एमएनए बना दिया जाए। खामोखा के लिए कौम का अरबों रुपये खर्च होता है, खामोखा के लिए दिन ख़राब होता है। कौम अपनी दुकानों को, अपने घरों को, अपने ऑफिसों को बंद करके लाइन में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद वो जाके वोट डालते हैं। मैं खुश हो जाता हूँ कि मैंने अलिफ को वोट डाला है, लेकिन मुझे दुख उस वक्त होता है कि उस डब्बे में से अलिफ के बजाय बे का वोट निकला है। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि वोट की हमारे मुल्क में हैसियत नहीं है। तो ये एक तजवीज़ थी, मैंने कहा मैं आपको दूँ। अब आते हैं 14 अगस्त पे। 14 अगस्त पे हमारी हुकूमत पाकिस्तान यानी
एग्रेसिव हो गए, इतने पीटीआई के लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि वो इमरान खान को माइनस करते करते वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल को माइनस कर बैठे। पाकिस्तान के बानी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिसने कुर्बानी दी, मुसलमानों ने कुर्बानी दी पाकिस्तान बनाने में, जिन्होंने ख्वाब देखा, जिन्होंने एक पाकिस्तान के तस्वुर दिया, उनको माइनस कर दिया गया। अब मुझे खदशा ये है, मैं अपने पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ कि मुझे अब खदशा ये है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पाकिस्तान की करेंसी पे भी तस्वीर हटा दी जाए और फिर जो इस वक्त जिनकी तस्वीरें लग रही हैं उनकी तस्वीर लगा दी जाए नोटों पे भी, ताकि फिर कायदे आज़म को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, उनकी तस्वीर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ, मैं उस वक्त समझूंगा कि जब इस पे भरपूर एक्शन होगा। जिसने 14 अगस्त वाले दिन इसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भूले, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेना भूले, उनको बाकायदे इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको उनकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मैं अपनी इस व्लॉग में ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने एक बताया गया था, जैसे मैंने बताया था, और उसमें व्यूवर्स ने बहुत मुझे लाइक किया और हज़ारों की तादाद में मेरे व्यूवर्स आए उसके अंदर। मैं उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसका उन्वान था मेरे व्लॉग का कि क्या पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा एक वाक़या और होने जा रहा है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक चल रही है, बेइंतहा नाजुक चल रही है। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में, इस वक्त हुकूमत में, इस वक्त सियासतदानों में, दूसरे लोगों में इस वक्त बेचैनी भी चल रही है। और अगर आपने एहतसाब करना है, क्योंकि हमेशा हम लोगों को एहतसाब के नाम पे लूटा गया है, एहतसाब के नाम पे हमें कमज़ोर किया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतसाब करना है तो फिर ऐसा एहतसाब होना चाहिए कड़ा कि वो जर्नलों का भी होना चाहिए और वो सियासतदानों का भी होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो करप्ट जजेस है उनका भी होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी का भी होना चाहिए और उन तमाम लोगों का होना चाहिए जिन्होंने करप्शन की है और जिन्होंने वादे खिलाफी की है और जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, ये वाज़ेह नहीं होगी, पाकिस्तानी कौम मुतमिन होने वाली नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी हमें चाहिए, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी उस वक्त आ सकती है जब एक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ हम ये लगे रहेंगे कि उनको जेल में भेजना है, नहीं भेजना है, सारा दिन मीडिया वहाँ लगा रहेगा और अडियाला जेल के बाहर जो है ना वो जो 100-200 लोग जो खड़े हुए हैं या जिनके नाम होते हैं उनके मुलाकात नहीं कराई जाती, तो ये अगर सारा दिन हम लगे रहेंगे तो फिर हम काम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमारी असेंबली वो सिर्फ और सिर्फ एक रबर स्टैम्प की नहीं बननी चाहिए। हमारे स्पीकर को भी एक्शन लेना चाहिए और सियासी लोग मिलके आपस में बैठे और बातचीत करें और इस पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश करें। अगर ये पाकिस्तान आज इस वक्त हम लोग नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम तो खैर 77 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमारी आर्मी वो इस वक्त मजबूत शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई है और पाकिस्तान को मजबूत करके खड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि हर इदारे के अंदर करप्ट लोग होते हैं, हर इदारे के अंदर ऐसे सांप ज़रूर होते हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और दीमक की तरह चाट रहे होते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे इनकलाब की ज़रूरत है कि जो करप्ट लोगों को इस तरीके से हटाया जाए, इस तरह से लटकाया जाए कि जैसे चाइना में हुआ था, तो ये पाकिस्तान सुधर भी सकता है और पाकिस्तान मजबूत भी हो सकता है। तो मैं इसके साथ अपना व्लॉग यह ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ, ताकि मैं, क्योंकि अगर मेरी बीमारी की वजह से
اگر کوئی الفاظ غلط میرا نکلا ہو تو میں معذرت آپ سے چاہتا ہوں. تو اب آپ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.